Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, please watch that video because I'm going to be discussing the important news articles of the day और उसी से related कुछ questions आज भी हम discuss करेंगे. So let's start with the first question. First question ये है कि March 3rd is celebrated as what? आज के आर्टिकल में देखा था, it is celebrated as World Wildlife Day. March 3rd celebrate किया जाता है. Let's see the next question. किस कंट्री ने इसको प्रपोज किया है? वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो. यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. थाईलैंड इस कंट्री ने प्रपोज किया था, जिसके कारण 2013 में हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया था. थीम क्या है इस साल का? हमने आर्टिकल में द हिंदू में भी ये देखा है दैट इट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस. आई टोल्ड यू समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस. तो अगर आपको एक दो वर्ड्स भी याद हो गए ना, इट विल बी इजियर फॉर यू टू मार्क द आंसर, राइट? सो आंसर इसका है ए. अगला क्वेश्चन है, कौन सा इवेंट कमोमरेट करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? व्हाई डू वी सेलिब्रेट ओनली ऑन March 3rd? बिकॉज इस दिन क्या हुआ? देयर वाज द साइनिंग और द अडॉप्शन ऑफ द साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा. सो 1973 में ये आया था, ये ऑर्गेनाइजेशन 3rd March 1973, और फोर्स में आया था 1 जुलाई को in 1975. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. ओके, हेडक्वार्टर्स पूछा है साइट्स का, हमने आज के आर्टिकल में देखा था. इट इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड. देयरफॉर आंसर टू दिस इज डी. अगला क्वेश्चन है, which company successfully landed its spacecraft on the moon, marking the first time a private mission has done so upright. सीधा किया है, that is Firefly Aerospace. बट अगर क्वेश्चन आता है which is the first spacecraft that landed on the moon first time, वो था Intuitive Machines, right? This is that machine. So this is the one that landed upright. ये जो है sideways land हुआ था. So that is the difference. Clear? Let's see the next question. What is the name of the mission? जो Firefly का lunar mission है, जो हमने देखा अभी, उस मिशन का नाम है Blue Ghost. Blue Ghost is the name of the mission. Next question. Near which lunar feature did the Blue Ghost mission touch down? So कौन से region में की हुआ था? It is in Mare Crisium region. Mare Crisium region, right? So we have seen Mons Libre. So that was the name of the place, and Mare Crisium, this is that region where it landed. Which of the following is the name of NASA's program designed to return astronauts to the moon? हमने देखा to send astronauts safely and coming to the moon. Artemis के 4 parts भी देखे हमने, right? So answer इसका A है. Which company achieved the first private company soft lunar landing in February, the first landing since crewed Apollo 17? I just discussed about this article. Yes, it is Intuitive Machines. तो पहला अगर लॉन्चिंग लैंडिंग पूछा है, इंट्यूटिव होगा. पहला लैंडिंग साइडवेज पूछा, सॉरी अपराइट पूछा, इट विल बी फायरफ्लाई मशीन. ओके, फायरफ्लाई एंड इंट्यूटिव. रिमेंबर 2 कंपनीज, एक ने 2024 में किया, दूसरे ने 2025 में किया, जो रिसेंटली ब्लू कोस्ट का है. Let's see the next question. When is World Hearing Day? आज के दिन है, that is March 3rd. Clear? Let's see the next question. थीम क्या है वर्ल्ड हियरिंग डे? आज अभी देखा हमने, चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक योर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी. देयरफॉर आंसर क्या है इसका? सी. We discussed in today's article. Please watch the video if you haven't. Very important articles were discussed. Okay, कौन से लॉ जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा है that a colonial law that allowed the arrest of people dancing in public places? Which is that law? It is Dramatic Performances Act of 1876. So जो आर्टिकल हमने देखा था, इस आर्टिकल के रिलेटेड था dramatic performances. Answer is C. When was the law repealed? Okay, the law was repealed in 2018. Already 17 में वो notification आया, 18 में it came into force that this law is now no more valid. अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म क्या है एपिक का? ओके, सो इफ यू रेड द आर्टिकल टुडे, वी हैव सीन इज रिगार्डिंग टू इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर. इलेक्टर फोटो, जैसे वोटर आईडी कहते हैं, वोटर आईडी का दूसरा नाम एपिक है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर. कितने लेंथ है, कितना नंबर्स होते हैं इस वोटर आईडी में? एपिक में कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर, 10 डिजिट नंबर है ये. तो देयरफॉर आंसर इसका बी है.
Which platform developed for election officials to handle all processes जैसे कि registration, migration, deletion of names from the electoral roll? उस web based portal, इस ऐप का नाम क्या है? It is Aeronet. ओके ये आज के आर्टिकल में देखा था, बिकॉज बिफोर एरोनेट नहीं था इसलिए बहुत सारे डुप्लीकेशन नंबर्स गए थे, बट अभी एरोनेट है, देयरफॉर इट विल बी लेस नंबर, लेस डुप्लीकेशन, लेस एरर्स इज व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेइंग. जीडीपी किसके लिए, किसका मेजर होता है? व्हाट इज जीडीपी यूज्ड टू मेजर? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी टू जीडीपी इन इंडिया? सबसे ज्यादा टर्शरी सर्विसेज यानी कि सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, वी कैन टॉक अबाउट टूरिज्म, राइट? दीज आर ऑल सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड व्हिच आर वेरी हायर इन नंबर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सर्विसेज. लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात पूछे तो एम्प्लॉयमेंट याद रखना, अभी भी हमारा एग्रेरियन कंट्री है, एम्प्लॉयमेंट की share is higher in agriculture as compared to the others, but GDP contribution is higher for the services. And the last question of the day, how many sectors are currently covered under the PLI scheme? यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में अभी 14 सेक्टर्स कवर होते हैं, and we saw like PLI 2.0 स्टार्ट हुआ है, which is with regard to laptops and PCs and tablets and all of that. So this is the answer for the last question. So this is all with regard to today's article. I hope आपको बहुत सारे questions यहाँ पे सही मिले. ऐसे वीडियोस देखो, participate करो in the comment section, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.